تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں حجاب کرتی ہوں، میں پراپر ریڈی نہیں ہو کر آتی، پراپر تیار نہیں ہو کر آتی، شاید اس وجہ سے میرے ویوز نہیں بڑھ رہے۔ اور پھر کہنا کہ اچھا ویڈیو 5 منٹ سے کم، 5 منٹس تک بناؤ، 10 منٹ تک ویڈیو نہ بناؤ، تو لوگ زیادہ دیکھنا پسند کریں گے، کہ لوگ پسند کریں گے۔ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرے گا۔ لوگ سانگ سننا پسند کرتے ہیں، اور جب لوگ سانگ سنیں گے تو اس کو شوق سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور میری ویڈیو کو بھی وائرل کریں گے۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی، ہر چیز کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اس نے اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تبھی اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، یا اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو یہ تو بہت اچھا انسان ہے نا، اسی لیے اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے کیونکہ یہ اچھا ہے۔ نو نیور، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کو بہت زیادہ دے کر آزما رہا ہوں کہ وہ کتنا میرا عبادت گزار ہے، اور کسی سے لے کر آزما رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میری آل یوٹیوب فیملی۔ اچھا، آج نا بڑی کنفیوژن سی تھی اور دل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اور اسٹل کنٹینیوسلی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ایک پریشانی سے گزر رہی ہوں، ٹینشن سے گزر رہی ہوں۔ وہی چیز ہے، یوٹیوب پر ورک سب نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کرے، کچھ نہ کچھ اچھا کرے، اور اس کے کرنے کے چکر میں دیکھیں ہر انسان اپنی اپنی فیلڈ میں کچھ ایفرٹ کر رہا ہے، کچھ کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کروں گا شاید اس سے زیادہ اچھی ایفرٹ کروں گا، مزید کچھ اچھا اور ڈفرینٹ لے کر آؤں گا، اس سے میری ویڈیو وائرل ہو جائے یا مجھے سکسیس مل جائے۔ لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اس قدر جو ہے وہ ہم ہم نے اپنے آپ کو گم کر لیا ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو اس قدر ان چیزوں میں بزی کر لیا ہے، ان چیزوں میں اپنے آپ کو ایک لگا لیا ہے کہ ہم نے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ رات مجھے اندازہ ہوا، احساس ہوا کہ میں ایک مسلم جو ہے وہ ریلیجن سے تعلق رکھتی ہوں، اور پریشانیاں ہیں ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے سم ٹائم لگتا ہے کہ اچھا یہ پریشانی کیسے ختم ہوگی، یا یوٹیوب پہ میں آ رہی ہوں، میں حجاب کر کے آ رہی ہوں، شاید اس وجہ سے میرے ویوز نہیں بڑھ رہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے، یہ لگتا تھا لیکن اب نہیں لگتا، رات کے بعد تو بالکل بھی نہیں لگتا۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں حجاب کرتی ہوں، میں پراپر ریڈی نہیں ہو کر آتی، پراپر تیار نہیں ہو کر آتی، شاید اس وجہ سے میرے ویوز نہیں بڑھ رہے، اور میں کیا ڈفرینٹ کروں، اور نا بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ بھی، اور گھر کی ایک روٹین اس قدر ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی، مینٹلی اس قدر ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسا کیا کروں۔ اچھا بھی کر رہی تھی لیکن اور سوچ رہی تھی کہ اس سے بھی زیادہ کیا اچھا کروں۔ تو رات کو جو ہے نا، اور اس کے علاوہ ایک اور بات، اچھا ویڈیوز بناتی ہوں نا، اکثر میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں نا، میں اپنے ان دیکھنے والوں کا سب کا تھینکس کرتی ہوں جو میری ویڈیوز کو، مجھے ان سب سے اتنا زیادہ لگاؤ ہے، اسپیشلی ان سب لوگوں سے جو مجھے میری ویڈیوز کو واچ کر کے اس کے نیچے کمنٹس اتنے پیارے پیارے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، انہی میرے پیاروں میں سے جو مجھے نا کمنٹس کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو مزید اچھی ہو۔ تو کچھ کرتے ہیں کہ عائشہ اپنے موبائل کا رزلٹ آپ دیکھو کہ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ میرے بہت پیارے ہیں جو یہ باتیں مجھے کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو اور اچھی ہو اور زیادہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ وہ تو مجھے واچ کرتے ہی ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی ریئلٹی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں کہ عائشہ اپنا موبائل چینج کرو، موبائل کا رزلٹ کرنے اچھا کے ہو بعد تو لوگ بہت اس طرح سے زیادہ یاد جو ہے کریں۔ وہ میں یہ میٹر چاہوں کرتا گی ہے کہ کہ آپ کی ہاں ویڈیو وائرل ہو زیادہ لوگ سے زیادہ۔ میرے بارے میں یہ اچھا کہیں کہ اس نے اس کے اللہ کی علاوہ خاطر کچھ اپنے آپ کو ڈفرینٹ سا کریٹ کور کرو رکھا، جس اس سے نے آپ اپنے کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو اللہ کے آگے حکم جائے، کے وائرل ہو۔ مطابق جو ہے نا وہ اچھا ڈھال ایک ہی لیا چیز تھا۔ بار بار میں نہیں لے یہ کر آؤ چاہتی ہوں، عائشہ، یہ ہے اور پھر ریئل کہنا کہ سکسیس، یہ اچھا نہیں ہے ویڈیو کہ 5 منٹ گلام سے کے کم، پیچھے بھاگ 5 رہے منٹس ہیں، تک بس بناؤ، جی 10 میں منٹ میرے تک سے ویڈیو زیادہ نہ پیارا بناؤ، کوئی نہیں ہے، تو لوگ زیادہ دیکھنا پسند کوئی نہیں ہے، کریں میرے سے گے۔ زیادہ حسین کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ لوگ میرا دیکھو میں نے پسند حجاب کریں گے۔ کیا ہوا ہے، سر تو میں نے کور کیا ہوا ہے۔ ہم اس قدر ڈوب گئے اس چیز میں کہ لوگ پسند کریں گے، ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرے گا۔ ہاں وقت ایسا گزر رہا ہے، حالات ایسے گزر رہے ہیں، ہر انسان کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان سوچتا ہے کہ میں کچھ ڈفرینٹ کروں، کچھ اچھا کروں جس سے میری زندگی بدل جائے، میرے حالات بدل جائے، میرا وقت بدل جائے، اور ان کی لائف چینج اچانک سے کیسے ہوئی کہ وہ بتاتی ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔
वो एक मेकअप आर्टिस्ट होते हुए वो प्रॉपर हिजाब में आती हैं, उन्होंने अपने हाथों पे ग्लव्स लगाए हुए हैं और क्या वो अपनी आईज का मेकअप करके दिखाया करती थी, सॉन्ग्स जो है वो यूज किया करती थी अपनी वीडियोस के लिए, ठीक है, ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। क्यों? वो बताती है अपनी वीडियो में कि मैं आप लोगों उनके चैनल का विजिट जरूर करिएगा, सादिया तैमूर नेम है। वो बताती हैं कि मैं इसलिए करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो की रीच बढ़े, क्योंकि लोग सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं और जब लोग सॉन्ग सुनेंगे तो उसको शौक से देखेंगे, ठीक है, और मेरी वीडियो को भी वायरल करेंगे। तो उनकी वीडियोस वायरल भी होती थी, माशाल्लाह से उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब कुछ कर रही थी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी थी, तो जिसकी वजह से मेरा मेरा यही मकसद था कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा और डिफरेंट करूँ और उन्हें कामयाबी भी मिली इस चीज़ में। लेकिन वो बताती हैं कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। अच्छा, आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है, मैं खुद अभी हिजाब में हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो हिजाब नहीं करता, वो मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, वो ये बिल्कुल भी ना समझे कि मैं उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, किसी भी ऐसे इंसान को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं यही बताना चाहती हूँ कि अब वो बंदी जो क्या करती थी कि मेकअप करके दिखाती थी, सॉन्ग्स को यूज़ करके वीडियोज़ बनाती थी, अचानक से अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। कुछ लोग उसे बुरा भी कहते होंगे, ठीक है, कि ये क्या है, ये कैसी वीडियोज़ अपलोड करती है, जो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते, जो बहुत ज़्यादा मज़हबी हैं। तो अल्लाह ताला को पता नहीं उस इंसान की ऐसी क्या अदा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी तरफ कर लिया और वो हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गई। उसने अपनी वीडियोज़, मेकअप आर्टिस्ट है बहुत अच्छी, लेकिन उनको ख़त्म करके उसने क्या किया कि उसने अपनी वीडियोज़ इस्लामिक टॉपिक्स पे बनाना शुरू कर दी। खुद को पूरा हिजाब में कवर कर लिया, ठीक है? तो ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताला को उसकी ऐसी कौन-सी अदा पसंद आ गई? तो सोचें, किसी को भी बुरा कहने से पहले सोचें। अगर आप खुद बाहिजाब हैं और अगर कोई सामने वाला हिजाब नहीं करता, अगर आप समझते हैं खुद आप बहुत नेक हैं और सामने वाला अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ें छोड़ दें करना। पता नहीं अल्लाह ताला को आखिरी टाइम तक किसी इंसान की कौन-सी अदा पसंद आ जाए कि अल्लाह ताला उसको हिदायत अता कर दे। और कुछ पता नहीं है कि आपकी जो अपने आप को बाहिजाब समझते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मज़हबी समझते हैं, पारसा समझते हैं और आखिरी टाइम पे अल्लाह ताला को पता नहीं आपकी ऐसी कौन-सी अदा पसंद आ जाए कि जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला आपको नापसंद करने लग जाए, ठीक है? तो दूसरों को तो जज करना इस दुनियावी कामयाबियों में नाकामियों के साथ किसी की अच्छाई या बुराई को जज करना कि इसके साथ बुरा हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है? तभी इसके साथ बुरा हो रहा है या इसके साथ अच्छा हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा इंसान है ना, इसीलिए इसके साथ अच्छा हो रहा है क्योंकि ये अच्छा है। नो, नेवर। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान गाह है। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान गाह है जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा देकर आज़मा रहा हूँ कि वो कितना मेरा इबादत गुज़ार है और किसी से लेकर आज़मा रहा हूँ, किसी को कम देकर आज़मा रहा हूँ कि ये कितना मेरा बंदा शुक्र करने वाला है, ठीक है? तो हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें और हर आने वाले दिन में अपने आप को बेहतर बनाना सीखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एक वक़्त था जब मुझे मुझे ये चीज़ें फ़ील होती थी। मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ कि मैं उनकी लाइफ़ से रिलेटेड भी बात करती, लेकिन अब मैं अपने अंदर जो चेंजेज़ लेकर आ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को चेंज करूँ। कि पहले क्या होता था, मुझे किसी की कोई बात बुरी लग जाती थी, तो मैं उस पर्सन से रिलेटेड कोई स्टेटस लगा दिया करती थी, ठीक है? क्या होता है इससे? आप लोग क्या करते हो? आप अपना अंदर ही चलाते हो, अपना दिल ही चलाते हो, अगले इंसान को और ज़्यादा आप जो है वो इस चीज़ में छूट दे रहे हो कि यार तुम ठीक हो और मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है? तो क्या है कि अब मैं ये बात कह रही हूँ कि हम अपने आप को आगे से आगे ले जाने के चक्कर में, कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में, किसी के फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं है, कोई फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, कोई किसी सिचुएशन में सफ़र कर रहा है, ठीक है? लेकिन क्या है कि वो चाह रहा है कि किसी न किसी तरह से हमारे हालात बेहतर हो जाएँ और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी औरतें जो हैं, बाहिजाब भी हैं, बहुत सी ऐसी हैं, जो ना चाहते हुए, आप खुद कुछ लोग अपने दिल से मुझे बताइएगा जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, कि आप लोग अपने दिल के अंदर कभी-कभी आपका दिल नहीं भी कर रहा था वो चीज़ करने को, लेकिन आप सोचते हो कि दुनिया वाले क्या कहेंगे? अगर मैंने ये किया तो इससे दुनिया वाले अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, तो मुझे ये करना है। मुझे अपने आप को दुनिया वालों के सामने अच्छा साबित करने के लिए अपने आप को बोल्ड भी बनाना है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या आप लोग ये चाहते हो? बीइंग अ मुस्लिम, क्या आप लोगों का ये दिल करता है? तो इसी तरह मेरा दिल नहीं करता। मैंने स्टार्ट लिया था अपनी वीडियो का, तब मैंने प्रॉपर हिजाब में स्टार्ट लिया था। मैंने वीडियोज़ बनानी शुरू की थी। मैंने इस्लामिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ बनानी शुरू की थी और फिर उसके बाद मैंने कहा वीडियो ही वायरल नहीं हो रही। फिर मैंने क्या किया कि मैंने
थोड़ी-सा डिफरेंस लेके आई। मैंने क्या किया, मैंने कहा हल्का-सा ना मेकअप ट्यूटोरियल लेके आती हूँ, क्योंकि मेकअप से रिलेटेड जो भी थंबनेल लगता है ना, तो उससे वीडियो ज़्यादा वायरल होती है। वो लगाई, उससे थोड़ी-सी वीडियो वायरल हुई, 1 लाख, 100, 200 शायद इतने करीब मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ चले गए। जबकि मैं अंदर से नहीं चाहती थी कि मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। हस्बैंड ने देखा, हस्बैंड ने थोड़ा-सा मुझे रिएक्ट किया कि आयशा तो आपने रॉन्ग किया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो मेरी नीयत देख रहा है ना कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या नीयत है। तो फिर वो खामोश हो गए। तो मैंने कहा अब क्या करें, ट्रेंडिंग में है, लोग देखना पसंद करते हैं इन चीज़ों को। बस मैंने आँखों का ही तो दिखाया, बिल्कुल लाइट सा ही तो दिखाया है। और फिर उसके बाद और फ़ील हुआ थोड़ा-सा, फिर एक दिन और मैंने ये चीज़ लेकर आई। फिर मैंने जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, और अभी भी सोच रही थी कि अच्छा कुछ इससे ज़्यादा अच्छा डिफरेंट करती हूँ। जबकि मेरा अपना अंदर मेरा दिल कर रहा था कि नहीं अच्छा इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अभी रात मेरी नज़रों से वीडियो गुज़र रही थी सादिया तैमूर की, और मैं हैरान हो रही थी कि हिजाब से कहाँ ज हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और कुछ लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है कि वो अल्लाह की तरफ वापस लौट रहे हैं। तो वो अपनी वीडियो में बता रही थी कि क्या हुआ, कैसे मेरी लाइफ़ बदली। कि एक तो मैं एक शादी में गई, और शादी में जब सब लोग मुझे देखते थे और मिलते थे, तो ना वो मुझे कहते थे अच्छा ये सादिया तैमूर है, ये यूट्यूबर है, ये मेकअप आर्टिस्ट है, तो बहुत अच्छा मेकअप करती है, ये काशिश के सैलून की जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे इस तरीके से जानते थे, जहाँ भी जाती थी लोग मुझे इसी नाम से पहचानते थे, ठीक है। फिर उसके अलावा कहती हैं कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं किसी की फ़ोतकी में गई, तो वहाँ पे जब जनाज़ा रखा हुआ था ना, तो सब लोग बैठे हुए थे आस-पास। तो आपको पता है कि कहते हैं कि इस्लाम में, हमारे मज़हब में कहा जाता है कि इंसान जब फ़ौत होता है ना, तो दुनिया में ही जब वो फ़ौत हुआ होता है, जब लेटा होता है, उसके मरने के बाद जब लोग आपसे रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, जो वो आपसे रिलेटेड गुफ्तगू हो रही होती है, तो वहीं पे ये जो है वो फ़ैसला हो जाता है कि इंसान कितना जन्नती है, कितना जहन्नमी है। तो एट लीस्ट अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग जब आप इस दुनिया से जाएँ, लोग आपकी अच्छाई बयान करें, ठीक है? आपको अच्छा समझें, ठीक है? तो अपने अमल को ऐसा कर लो, इतना अच्छे इंसान बन जाओ। इतने अच्छाई वाले काम करना शुरू कर दो। तो वो कहती हैं कि मैं जब सुन रही थी कि लोग उनसे बारे में से रिलेटेड जो भी बात कर रहे थे, मेरे माइंड में क्लिक किया कि जब मेरी डेथ होगी, मैं इस दुनिया से जाऊँगी, तो लोग मुझे किस नाम से पुकारेंगे कि ये एक यूट्यूबर थी, ये मेकअप करती थी, और बड़े अच्छे सॉन्ग्स पे इसकी रील्स बनती थी, और ये सब कुछ होता था। फिर कहती हैं कि उसके बाद एक और चीज़ ने मुझे थोड़ा-सा और जो है वो झंझोड़ा, कि मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर ही, कि उसमें वो पर्सन बोल रहे थे कि जो भी वीडियो में बता रहे थे, कि एक आदमी था, उसके 1.5 मिलियन फॉलोवर्स थे, और वो क्या करता था कि वो इसी तरह से जो है वो सॉन्ग्स की वीडियोज़ बनाया करता था, और उसके फॉलोवर्स थे, वो बहुत अच्छा जो है वो अर्न करता था। तो लेकिन जब उसकी डेथ हुई, तो उसके दोस्त के ख्वाब में आया कि उसका वही दोस्त जो जिसके 1.5 मिलियन फ्रेंड्स थे, वो ख्वाब में रो रहा है, तड़प रहा है, और वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मुझे जो है वो सुकून नहीं है ज़िंदगी में। हाँ जी, सॉरी, मेरी बेटी उठ गई थी, तो मैं इसको भी साथ ले आई। तो वो क्या बताता है कि वो ख्वाब देखता है, ख्वाब में क्या देखता है कि उसका जो दोस्त है, वो ख्वाब में परेशान है, और वो कह रहा है कि मेरी रूह को सुकून नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। तो जब उसने देखा, तो उसे पता चला, उसने सोचा कि इसकी वीडियोज़ जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हैं। शायद इस वज़ह से जो है कि कहते हैं कि जब इंसान मर भी जाता है ना, तो जो वो अच्छा अमल करके जाता है, जो हमेशा के लिए रहने वाला होता है पीछे से, सदका जारिया के तौर पर, तो वो चलता रहता है, उसका सवाब आपको मिलता रहता है। इस तरह से उसकी जो वीडियोज़ हैं, जितने भी लोग देख रहे थे ना, तो उससे उसको गुनाह और ज़्यादा मिल रहा था, जिससे उसको तकलीफ़ हो रही थी। तो उसके दोस्त ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो वीडियोज़ किसी न किसी तरह से डिलीट हो जाएँ, उसके लिए आसानी हो जाए। तो अब उसको उसका पासवर्ड तो नहीं पता था अकाउंट का इतना, लेकिन उसने क्या किया, हैकर के थ्रू उस आदमी की, अपने उस दोस्त की जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी वीडियो सारी डिलीट करवाई, ताकि उसके लिए वो जो अज़ाब है उसमें कमी आ जाए। तो ये देख कर, ये सोचकर सादिया तैमूर ने कहा कि मैंने देखा कि मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे दुनिया को राज़ी नहीं करना। और यही चीज़ है, हम दुनिया को कभी भी राज़ी नहीं कर सकते। हम जितना मर्ज़ी कह लें कि हम इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, इतनी दौलत कमा लेंगे,
इस काम से इतना अर्न कर लेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिशात का पलड़ा कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और दूसरा ये कि जब आप परेशान हैं, आपको नाकामी हो रही है मुसलसल, तो इट्स नॉट मीन कि अल्लाह ताला आपके साथ नहीं है। अल्लाह ताला हर किस्म के हालात में आपके साथ होता है, ठीक है? अल्लाह ताला ने इतने-इतने इम्तिहानात अपने अंबिया से भी लिए हैं। तो बस मैं भी कोशिश करती हूँ, इंशाअल्लाह ताला आगे मैं भी यही कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियोज़ लिमिट्स में रहकर बनाऊँ। और बस आप सब लोगों को भी यही कहना है कि आप लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना, किसी अच्छे काम की तरफ अपनी राह में गामज़न है, तो उसको उसको एप्रिशिएट करें, ठीक है? और खुद भी देखें कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे, हम कहीं कंटेंट के चक्कर में, दुनिया को अपनी तरफ माइल करने के चक्कर में कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे, कुछ रॉन्ग तो नहीं बोल रहे, जो कि जब हम इस दुनिया से चले जाएँगे, तो वो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगा और उसका गुनाह या सवाब हमें मरने के बाद भी मिलता रहेगा। तो कोशिश करें अपनी वीडियोज़ में जब एक-दूसरे को शदीद आप लोग गिरा रहे होते हो, एक-दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हो, सॉन्ग्स चला रहे होते हो, कुछ भी ऐसा कंटेंट बना रहे होते हो, तो 100 बार सोच लें कि जब आपकी डेथ भी हो जाएगी ना, क्योंकि ये बात एक हकीकत है कि हमने इस दुनिया से जाना है, हमने इस दुनिया से जाना ही जाना है। पता नहीं इतने साल हमने ज़िंदगी के गुज़ार लिए हैं। ये रात मैं लेटी भी सोच रही थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी कि देखिए ज़िंदगी के 27-28 साल मैंने गुज़ार लिए हैं, पता नहीं आगे मेरी ज़िंदगी के कितने साल हैं। लेकिन फिर भी इतनी फ़िक्र लगी हुई है कि अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये मसाइल कैसे हल होंगे, वो मसाइल कैसे हल होंगे, लेकिन खुद अपनी ज़िंदगी के एक पल का भी नहीं पता, जो एक पानी के बुलबुले के बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या पा रहे हैं? तो हमें मैंने ये चीज़ें पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा देखी, यूट्यूब पर भी स्पेशली देखी कि एक-दूसरे को गिराने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कि अच्छा इसके बारे में कोई बात कर देंगे, ये कोई बड़ा यूट्यूबर है, इसको थोड़ा-सा नीचे दिखा देंगे तो हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, हमारा कंटेंट अच्छा हो जाएगा। तो खुदारा ये सब चीज़ें ना करें, खुदारा ये सब चीज़ें ना करें। बस अल्लाह ताला हम सबको सबको अपने जो है वो अमान में रखे, हम सबकी इस्लाह करे, मेरी भी इस्लाह करे और मेरे थ्रू आप सबकी इस्लाह करे। और मुझे आज की वीडियो से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग कहें कि अपनी वीडियो इतनी बनाएँ कि जिससे लोग वॉच करें, जिससे आपके व्यूज़ अच्छे आएँ, आपकी वीडियो वायरल हो। तो बस मुझे आप सबसे यही कहना है कि आप कुछ भी करें, अच्छा करें और डिफरेंट करें, ताकि कम ही लोग आपको देखें, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ सीखें। और बस ये दुनिया बिल्कुल एक हमारे लिए इम्तिहान का है और इसमें हम आए हैं और हमने एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। तो बस अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करे और हम कोशिश करें कि हमारी ज़ात के थ्रू किसी दूसरे इंसान को कुछ भी उसके साथ रॉन्ग ना हो। बाकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ़ हैं, उनको साथ लेकर चलना है, उनको अपनी ज़िंदगी में साथ लेकर आगे बढ़ना है हमने, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी भी इस्लाह करनी है। बस यही आज की मेरी थी वीडियो। आज की वीडियो बहुत सी चीज़ों पर बनानी थी, बहुत से टॉपिक्स पर बनानी थी। कुछ और माइंड में था लेकिन रैंडमली ये माइंड में आया, मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि जो मैं करूँगी वही बड़ी होके मेरी बेटी भी करेगी। तो मेरी मेरी बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश है कि मैं अपने हिजाब में रहते हुए कुछ अच्छा और डिफरेंट करूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ मोटिवेशन से रिलेटेड होती हैं। आगे मैं आप लोगों के साथ मोटिवेशन से रिलेटेड ही अपनी रूटीन्स के साथ भी बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी। और उसके अलावा जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो अपनी एक शॉर्ट फ़िल्म्स टाइप भी क्रिएट करती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि अपनी हदूद में रह के हर चीज़ को क्रिएट करूँ। ऐसी चीज़ें क्रिएट करूँ जो मेरे मरने के बाद भी सदका जारिया के तौर पर हों। सपोज़ अगर मैंने कोई ऐसी शॉर्ट फ़िल्म बनाई है या शॉर्ट स्टोरी क्रिएट की है जिसमें कोई ना कोई मोरल लेसन है, तो जब वो लोग देखेंगे उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे तो उसका सवाब भी पहुँचेगा। तो बस मेरी यही नियत है और आप भी कोशिश करें कि जो भी करें अच्छा करें, ठीक है? इस सोच में ना पड़ें कि अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन के चक्कर में लोगों को क्या अच्छा लगता है, इस चक्कर में कहीं अपनी आखिरत तो खराब नहीं कर रहे। इस बारे में ज़रूर सोचें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आई नो कि मेरी वीडियो आज भी हमेशा की तरह लंबी है, लेकिन जिन्होंने अभी एंड तक मेरी इस फुल वीडियो को वॉच किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।